अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, सेहत के मामले में तमाम मुमालिक अपनी रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान भी हेल्थ सेक्टर के अंदर नित नई रिसर्च के बाद जिद्दत पेश कर रहा है। चाहे एम्बुलेंसेस हो, चाहे मशीनरी हो, हेल्थ सेक्टर और अस्पतालों से मुताल्लिक कोई भी चीज़ हो, हेल्थ केयर के नाम से मुनक्किद होने वाली एक्सपो में ये बताया जा रहा है कि किस हद तक पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो निजी अस्पतालों की सूरत में हो या फिर सरकारी अस्पतालों की सूरत में हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के तहत और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के तहत बिलखुसूस हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ इसमें जो अपना किरदार अदा कर रही हैं, आज हेल्थ केयर एक्सपो में ये सारी चीज़ें अवाम के सामने रखी जा रही हैं ताकि अवामुन्नास और दुनिया ये जान सके कि पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर में किस हद तक आगे बढ़ रहा है। हम प्रोग्राम आवाज़ में आज आपको मुतारिफ करवाएंगे हेल्थ सेक्टर से मुताल्लिक जो मज़ीद नई जिद्दत सामने आई है, जो रिसर्च और इनोवेशन के बाद पेशेंट्स की सहूलत के लिए, हेल्थ सेक्टर में अवाम की सेहत की सहूलत के लिए जो जो इक़दामात सामने आए हैं और इस रिसर्च की बुनियाद पर हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान किस हद तक आगे बढ़ा है, ये भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करते हैं, लोगों से उनकी राय भी जानते हैं और जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जो हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हेल्थ केयर एक्सपो में इस वक्त वो तमाम तर चीज़ें जो सेहत से मुताल्लिक हैं, बिलखुसूस सेहत से मुताल्लिक वो मशीनरी जो अस्पतालों में हमें दिखाई देती है, चाहे वो फिजियोथेरापिस्ट के लिए कारआमद हो या फिर एक पेशेंट को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए, तो ऐसी एक कंपनी के जो कंट्री हेड हैं, अज़रबैजान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर फरीद, पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हैं और BTL नाम की इस कंपनी को यहाँ पर प्रमोट भी कर रहे हैं और साथ ही जो सहूलियात यहाँ पर पेशेंट केयर में फराहम की जा रही है वो भी इस कंपनी की जानिब से किस हद तक पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के लिए मुआविन है, इससे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. सर, हाउ आर यू? Fine, and you? Alhamdulillah, Mr. Fareed, I'm really happy to see that you are from Azerbaijan and you are promoting this company for the patient care in Pakistan. So, can you please tell us about your products and new innovations in healthcare sector? Yes, sure. So we are official branch office of BTL in Pakistan. We have 85 branches in the world, and Pakistan branch established 2 years ago as a manufacturer of physiotherapy and neurorehabilitation robotic technologies, and also cardiodiagnostics and as well as aesthetic machines. We are happy to present our machines for healthcare in Pakistan. So we are a European company. We have European, you have manufacturing facilities only in Europe. All our products are FDA certified, CE certified machines. And today we are presenting all our portfolio. We have physiotherapy today here, we have aesthetic machines, and we have cardiodiagnostic machines today. Okay, so these are all imported machines from Europe, and in future we can manufacture these machines in Pakistan. So we need time to think about this, to plan everything. It is possible because Pakistan is an emerging country, and there is a bright future for healthcare system in Pakistan, and you have already big experience in healthcare system manufacturing. So we can discuss, we can think about this. For now, we are just new company, new branch in Pakistan, so we are just promoting our machines for now. Inshallah, we are also hopeful. I just want to know, this is an era of artificial intelligence, and when you are manufacturing or importing this kind of devices, so AI is playing its very important role. So how health sector is beneficial with artificial intelligence for these devices? I can speak on behalf of our company. We recently introduced our new ACG line, which is working with the help of AI. And we have special aesthetic machine. This is Axion device, micro needling RF device, which also use AI. So AI came into our lives in every sector, in every field, and in healthcare we are using also AI. It is very important to use it to benefit benefit AI generally, and we are using it in our machines also. Mr. Fareed, nice to see you. Thank you very and much thank for you for having your me. time. Thank you very much. तो नाजरीन, जो मशीनें इस वक्त इनकी कंपनी इंट्रोड्यूस करवा रही है उसमें AI बेस्ड मशीनें भी आ चुकी हैं और एक मशीन को हम यहाँ पर आपके सामने भी दिखाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या ये मशीन काम करती है, किस तरीके से हेल्थ केयर में या पेशेंट केयर में सपोर्टिव? ये बेसिकली आपको, जैसा कि हमारे कंट्री हेड ने बताया कि हमारी कंपनी के 3 सेगमेंट हैं।
एक एस्थेटिक है, फिजियोथेरेपी है और कार्डियोलॉजी उसमें है। ये दिस मशीन इज़ वन ऑफ द फिजियोथेरेपी सेगमेंट, और ये हायर एंड टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली जो पेशेंट जिनको बैक पेन है, मसल्स के प्रॉब्लम्स है, उनकी मायोस्टिमुलेशंस होती है, स्पस्टिसिटी रिडक्शन के लिए बेसिकली ये यूज़ होती है, विच इज़ दिस मशीन इज़ बेसिकली डेडिकेटेड फॉर द स्पस्टिसिटी रिडक्शन एज वेल। लाइक जिनको स्ट्रोक होता है उसके बाद ये उसको हेल्प आउट करती है। डेमोन्स्ट्रेट भी इसको करके दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल, श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट देन नाउ। मैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये बेसिकली AI बेस्ड होती है इसमें, और इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इसमें अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्विक प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मसल स्ट्रेंथिंग का हो गया, फ्रैक्चर कोई होता है उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके लिए मशीन डिफरेंट उसको यूज़ करती है। लेट्स से हम फ्रैक्चर को ले लेते हैं, अगर किसी भी पेशेंट में फ्रैक्चर है तो उसको कैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं। और जॉइंट मोबिलाइजेशन विच इज़ वेरी बेसिक फॉर द एवरीवन हु हैव, जो भी बूढ़े अफराद होते हैं उनको जॉइंट के मसले होते हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जॉइंट मोबिलाइजेशन पे क्लिक करना है हमें? हाँ, हम इसको जॉइंट मोबिलाइजेशन पे क्लिक करेंगे। लेट्स क्लिक इट। इसमें अब हमारे पास ये सारा स्क्रीन आ जाती है। इसमें हमारे पास टाइम आता है, कितने टाइम के लिए ये ट्रीटमेंट होगा, क्या सेगमेंट करेगी। उसके बाद ये मशीन आपको बताती है इसमें फेजेस कौन कौन से होंगे, रिलैक्सेशन का कौन सा होगा, स्ट्रेचिंग का कौन सा होता है। बेसिकली इस मशीन का मेन काम ये है कि ये आपके मसल को स्ट्रेच और रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी रिक्रीज होती है, जो कि लीड करता है आपके जॉइंट मोबिलाइजेशन को। हेल्थ से मुतालिक जब बात हो रही है तो लोग अपनी ब्यूटी केयर पर भी, अपनी स्किन केयर पर भी बड़ी तवज्जो देते हैं। एस्थेटिक का ये सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि चाहे आपके स्किन पे झुर्रियाँ आ रही हैं और या फिर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए, और जितनी भी इस किस्म की थेरेपीज़ हैं या फिर एस्थेटिक से मुतालिक ये मामलात हैं, अब इसमें भी जिद्दत आ चुकी है, इसकी भी डिवाइसेस आ चुकी हैं। ऐसी एक मशीन हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है जो कि एस्थेटिक डिवाइस है, और अमरीन साहब हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? I'm fine, thank you. अमरीन, मुझे बताइए कि अब इतनी जिद्दत आ चुकी है और लोग बड़ा अपने आप पे तवज्जो देने के लिए, चाहे वो सैलून्स में जाते हों या फिर ऐसे एस्थेटिक सेंटर्स में जाते हों, तो पाकिस्तान में आप समझ रही हैं इसका स्कोप बढ़ रहा है? पाकिस्तान में एस्थेटिक्स जो है अभी बिल्कुल बूमिंग मार्केट है, यू कैन से। अब इसका स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छी लगूं, और सब अब हर बंदी हाउसवाइफ है या वर्किंग लेडी है, अब सबको अपनी तरफ ध्यान देने का ख्याल ज़्यादा आ गया कि ठीक है अब हमें खुद अपने लिए कुछ करना है। ये डिवाइसेस किस हद तक सपोर्टिव रहती हैं, कितना ऑपरेट करना इसको आसान होता है, और क्या क्या इसमें फंक्शंस मौजूद हैं? अच्छा, ये डिफरेंट आपको क्लिनिक्स में डिफरेंट डिवाइसेस मिलेंगी। वी आर BTL कंपनी, तो हम आपको अपनी डिवाइस के बारे में बता देते हैं कि इस डिवाइस के साथ एक तो सबसे अच्छी बात ये इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, तो आप जिस टाइम ट्रीटमेंट कराएंगे आप उसके फ़ौरन बाद बाहर भी जा सकते हैं, और आपको रिजल्ट्स फर्स्ट टाइम में। ये एक्सीलेंस अल्ट्रा हमारी डिवाइस है। दिस इज़ मेनली फॉर रिंकल्स, आप कह सकते हैं रिंकल्स के लिए, फेस लिफ्ट के लिए है, और मिनिमम बॉडी फैट्स अगर आपके हैं तो उसके लिए है, सैगिंग आर्म्स के लिए है। तो वी हैव 2 डिफरेंट एप्लीकेटर्स, एक फेस एप्लीकेटर है हमारा, एक बॉडी एप्लीकेटर है इसमें। तो ये डिफरेंट एरियाज को टारगेट करता है इस तरह। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आप इसमें डेमो करके हमें दिखा सकें कुछ, किस तरीके से वो कर रहा होता है या ऑपरेट कैसे कर रहे होते हैं। अभी हमने कुछ यहाँ पे डेमो के लिए, इसके लिए वी नीड अ काउच, हमने अभी रखा नहीं है यहाँ पे डेमो, लेकिन इफ़ यू वांट आई कैन शेयर अ वीडियो और समथिंग, वीडियो में आपके साथ। और इसको ऑपरेट करना आसान होता है किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक के अंदर? थोड़ा सा ये होता है कि आपकी जो बंदा ऑपरेट करता है ना, जो हम लोग वी मेक श्योर कि आपके क्लिनिक में बंदा बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बंदा अगर किसी डिवाइस को अप्लाई करने लग जाए या उसको यूज़ करने लग जाए, तो उससे फिर ये होता है कि जिसको नहीं पता होगा तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्योंकि इसको यूज़ करने का एक प्रोटोकॉल होता है, आपने एक तरह से फॉलो करना पड़ता है कि आपने किस तरह डिवाइस यूज़ करनी है किसी पे। तो वो अगर सही तरह कोई यूज़ नहीं करेगा तो आप कैसे वो कर सकते हो। तो हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि उनकी ट्रेनिंग हो जाए, जब वो हमारी तरफ से ओके होता है तो उसके बाद वो अपनी क्लिनिक में यूज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीन, थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से नाजरीन, जो मज़ीद डिवाइसेस भी हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, वो ये जाहिर कर रही हैं कि अब इंसानी की ज़िंदगी का कोई भी मामला है वो हेल्थ केयर डिवाइसेस के ज़रिए हल हो सकता है, और एक इंसान अपनी हेल्थ पे बासानी बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो दे सकता है, और यही इनोवेशन और रिसर्च जो है पाकिस्तान के हेल्थ केयर सेक्टर को भी आगे बढ़ा रही है।
तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है और उन्होंने अभी अभी जो है ये सीखा है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या सीखा, क्या समझा? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सीखा कि यहाँ पर हम कैसे एमरजेंसी में अपने पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो ट्रैफिक में जब हमारे पास टाइम पे हमारे पास एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती तो हमारी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम सबको CPR करना आएगा, लाइक इट्स नॉट जस्ट कि डॉक्टर्स, लेमैन भी अगर CPR करना सीखते हैं तो हम लोग कितनी ज़्यादा लाइफ को सेव कर सकते हैं। लाइक इट्स जस्ट अ लाइफ सेविंग टेक्निक एंड हम लोग को कितना बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी को सांस का कोई मसला हो जाता है तो किस तरीके से फर्स्ट एड दी जा सकती है? मुजाहिद साहब मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, आपको भी हमने देखा, भी आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो क्या इसमें मजीद चीज़ें हो सकती हैं? अगर उनका दिल काम कर रहा है किसी पेशेंट का, उनको सिर्फ सांस का मसला है, तो हम उसको रेस्क्यू ब्रीथ करते हैं। वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है BVM होता है, उसके साथ एवरी 5 to 6 सेकंड के बाद उसको एक उसके साथ ब्रीथ दिया जाता है। वो एक अलग सा प्रोसेस है, तो उसकी साइमुलेशन आज हमारे पास नहीं है, विजिबली हम आपको दिखा नहीं सकते, जस्ट वर्बली बता सकते हैं कि उसको एक BVM के थ्रू हम जो है एवरी 5 to 6 सेकंड के बाद उसको एक बिलो एक सांस देते हैं। जस्ट उसको रेस्पायरेशन की नीड होती है और कार्डिक के हवाले से उनको किसी चीज़ की भी नीड नहीं होती। हेल्थ से मुतालिक लोगों की राय सामने आ रही है और हेल्थ केयर एक्सपो में लोग अपने डिफरेंट ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। मजीद भी बात होगी, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बदर एक्सपो एक बड़ा नाम है और मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं तनवीर अब्दुल्ला साहब, जो कि आज अगर हम कहें कि हेल्थ केयर एक्सपो के उन्वान से जो कराची में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो हो रही है, उसमें बदर एक्सपो का तनवीर अब्दुल्ला साहब, उनकी टीम का एक बड़ा रोल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह माशाल्लाह, पूरे साल ही आपकी एक्टिविटीज़, एक्सपो, प्रोग्राम्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज और ग्रोइंग इमेज को उजागर करने के लिए आपका बड़ा एक किरदार और रोल है। हेल्थ केयर में हमने पहली दफ़ा देखा कि आपने एक बड़ी काविश की, आपकी टीम ने, आप सब लोगों ने। क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स थे? जिस तरह आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही है कि बदर एक्सपो जो है वो 25 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है और बदर एक्सपो ने ऑलमोस्ट सारे जॉनराज में काम किया है, डिफेंस से लेकर मिलिट्री, डिफेंस से लेकर सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर जॉनरा में हमने काम किया, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स। तो हमने ये सारे जब करा तो फिर हमने ये सोचा कि हेल्थ केयर इज़ वन सेक्टर जो हमने जिसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस। और उसके बाद हमने डॉक्टर आबिद को एज एन एडवाइजरी रोल में लिया। डॉक्टर आबिद कम्स विद 40 years of experience in this industry और उनकी वजह से हमें बहुत इंसाइट मिली और बदर एक्सपो वाज एबल टू पुट दिस इवेंट टुगेदर। इसका प्राइमरी फोकस जो है ना वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे है, क्योंकि हमारी मुल्क जिस तरह आप जानते हैं हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास ना वो वसाइल हैं ना वो अस्पताल हैं जो हमारे इस बर्डन को सस्टेन कर सकें। हमारे पास एक चीज़ है कि हम लोगों को ये सिखा दें कि आपने बीमार होने से बचना कैसे। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हमारा प्राइमरी फोकस था और वो उसी एजेंडा पे हमने ये पूरा सेटअप किया है। सर, SIFC का आपने भी जिक्र सुना होगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, उसमें हेल्थ सेक्टर को भी तवज्जो दी गई है। क्या हम दुनिया के मुकाबले में आ सकते हैं, या अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान हेल्थ केयर डिवाइसेस को बना के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है? देखें, ये अब मैं इसमें आई वुड लाइक डॉक्टर साहब टू ऑल्सो ऐड ऑन, SIFC के साथ हमारा बड़ा क्लोज इंटरेक्शन है, बिकॉज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस है। बदर एक्सपो जो है ना, जब वो ये बात करता है कि हमारा मकसद फॉर होल्डिंग एग्जीबिशन इज़ नॉट कि नुमाइश है, हमारा मकसद होता है टू ब्रिजिंग गैप्स, हम वो दो लोगों को मिला दें जिससे मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा हो, राइट। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस है। और जिस तरह इसके अंदर इट्स नॉट ओनली जस्ट द फार्मास्यूटिकल्स बट जितनी उसकी एलाइड इंडस्ट्री है, वो ना सिर्फ हम बचपन से पढ़ते आए, आपने भी पढ़ा है, जितना क्रू खड़ा है उन्होंने भी पढ़ा होगा ये, कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सियालकोट से बनते थे और एक्सपोर्ट होते थे। जब हम 3 चीज़ें लिखते थे बचपन में तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बट उससे बहुत आगे निकल गई है दुनिया एंड वी नीड टू डू दैट। डॉक्टर आबिद अब्बास शेख साहब, मोर देन 40 ईयर्स सर आपने फील्ड में दिए और एक बड़ा आपका नाम है, और अभी जिस तरह सर ने बताया कि एज एन एडवाइज़र आपकी ये सारी रिकमेंडेशंस हैं। अब आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले को किस तरीके से मज़ीद पाकिस्तान में आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या हर शहर में इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस और एक्सपोज करने होंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में
इस प्लेटफॉर्म से बढ़कर हमें सिर्फ कराची को नहीं पूरे मुल्क को, हालांकि इसके अंदर हमने दूसरे शहर के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, हमारे पास इंटरनेशनल भी स्पीकर्स हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तमाम शहरों की जो है वो आए। तो उसके लिए ये हमारा पहला शो था। इसके अंदर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था ना, साइंटिफिक प्रोग्राम करना था। तो साइंटिफिक प्रोग्राम के लिए 10 टॉपिक सेलेक्ट करना, वो टॉपिक्स वो वाले जो कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं, इसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप्स को यकजा करना। हमारे पास आज भी मेरे ख्याल में वसाइल की कमी नहीं है, मगर वो वसाइल की तकसीम जो है वो प्रॉपर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ ये कि हम हमारी जो नई जनरेशन है, नए यंग टैलेंट जो हमारे पास है, उसे हम गाइडेंस दें कि उन्हें किस शोबे के अंदर आगे जाना चाहिए। ठीक है, आपको हैरत होगी ये जानकर कि सर्जन्स की कमी नहीं होती, बेहोश करने वाले डॉक्टर्स की कमी हो जाती है। बेहोश करने वाले डॉक्टर्स का है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो उस एक्सपोर्ट को हमें रोकना है। रोकेंगे कब? जब हम यहाँ पर उनके लिए मौके पैदा करेंगे। तो दरअसल ये जो पूरी सूरत हाल काविश है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में ओझल हुई हुई हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है, रिसर्च भी हो रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहा, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? डायरेक्शन की कमी है बुनियादी तौर पर। लोग काम कर रहे हैं, मगर ये कि उस काम को यकजा करने की ज़रूरत है। जैसे अभी प्रोफेसर शाहिद साहब, उनकी सामान्य शिफा फाउंडेशन, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि पाकिस्तान से जो चीज़ें, पाकिस्तान की ज़रूरियात जो हैं वो हम इंपोर्ट ना करें, बल्कि हम यहाँ पर बनाएं और उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि हम ना सिर्फ वो लोकल मार्केट को फैसिलिटेट करें बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट करें। उसके नतीजे में क्या होगा? एक बहुत मोटी सी चीज़ उसके नतीजे के अंदर वो ये है कि कॉस्ट कम होगी, नतीजा ये होगा पेशेंट को बेनिफिट होगा। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जब देखते हैं, आपका भी एक्सपोजर है, वहाँ पर रिसर्च पेपर प्रेजेंट होते हैं, दुनिया भर से आते हैं स्कॉलर्स, मेडिकल के लोग भी आते हैं। क्या पाकिस्तान में भी हम इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि दुनिया भर से लोगों को यहाँ पे बुलाएं और यहाँ पे भी रिसर्च पेपर्स पढ़े जाएं? देखिए, ये काम हो रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एसोसिएशन जो है कर रही है। पीडियाट्रिक एसोसिएशन है वो कर रही है। अभी मैं इस पिछले महीने के अंदर, बल्कि इसी महीने के शुरू में, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के सेमिनार के अंदर था। तो 11 लाख मरीज़ वो हर साल देखते हैं, तकरीबन 1 लाख मरीज़ रोज़ाना, तकरीबन 1 लाख मरीज़ महीने के, 3000 मरीज़ जो है वो दिन के। डेटा बेहिसाब है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, मगर इसके ऊपर काम जो है ना वो कम हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उन्हें हमें आगे लाना चाहिए कि वो इस रिसर्च वर्क के अंदर आगे बढ़े। सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा डिजिटलाइजेशन इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पा रही हेल्थ सेक्टर में? देखिए, डिजिटलाइजेशन जो है ना, उसका एक बहुत सिंपल है, एक बहुत वन लाइन आंसर मैं आपको दे देता हूँ। डिजिटलाइजेशन इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रिवायत है काम करने की, एक तरीक़ेकार है, और उसके बहुत सारे अंडरलाइन पहलूज भी हैं, बट वो डिजिटलाइजेशन उन चीज़ों को सर्कमवेंट कर देती है, उन चीज़ों से आगे बढ़ जाती है। इस पे बहुत काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, और इट विल बी अ स्लाइटली स्लो जर्नी, मगर इंशाल्लाह कुछ ही साल में आप देखेंगे कि कंप्लीट डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में आईवी सॉल्यूशंस का जिक्र होता है, जो कि ड्रिप से रेलिवेंट हो जाता है। राव अथर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मेडिफ्लो कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। आईवी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हॉस्पिटल्स के अंदर तमाम पेशेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी, जैसे ही पेशेंट दाखिल होता है तो आपको सबसे पहले ड्रिप्स जो है वो लगाई जाती हैं। पहले ये ड्रिप्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ही इंपोर्ट की जाती थी यहाँ पे पाकिस्तान में। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर फ़र्स्ट जो है हमारी मेडिफ्लो जो है वो तकरीबन आज से कोई 10 से 15 साल हो गए, और फर्स्ट यूरोपियन टेक्नोलॉजी के अंदर हम बना रहे हैं, और पॉलीप्रोपिलीन के अंदर ये आती है, जो क्रिस्टल क्लियर बॉटल होती है, और जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसको। और हॉस्पिटल की नीड है, सबसे पहले ज़रूरी होता है हॉस्पिटल के अंदर ड्रिप्स पेशेंट को सबसे पहले लगाई जाती है। आज से 10-15 साल पहले ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने इसमें भी अपना एक रोल प्ले किया और अब यही मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तानी जो है हमारी सबसे पहली जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड में हमारी पास आती है मेडिफ्लो। लोगों को आजकल भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, तो ये यंगस्टर्स हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है जिससे ये डायग्नोस्टिक कर लेते हैं कि क्या लोगों को ये बीमारी हो रही है, नहीं हो रही, कैसे इसको ये डायग्नोस्ट करते हैं। इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हसनैन अहमद है। हसन, क्या तुमने प्रोजेक्ट बनाया है और किस तरीके से ये पता करते हो कि लोग जो हैं उनमें ये बीमारी है, या हो सकती है कि जी वो भूलने की आदत बन जाती है लोगों? सर, असल में भूलने का ताल्लुक होता है हमारे हिप्पोकैम्पस से। हिप्पोकैम्पस ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन है। सो हमारा मॉडल क्या कर रहा है, उसको क्वांटिफाई कर रहा है, उसका साइज़ बता रहा है।
जितना कम साइज़ होगा उसका मतलब ये होता है कि आपको भूलने की बीमारी ज़्यादा है। सो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसको काफ़ी टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को फाइंड करने के लिए। हमारा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सेम काम विद इन सेकेंड्स में कर रहा है और आपको हिप्पोकैम्पस का साइज़ जो है वो बता रहा है। कोई डेटा अगर इनपुट किया हो तो दिखा सकते हो डेमोन्स्ट्रेट करके कि किस तरीके से ये रिजल्ट देता है? जी बिल्कुल, इसमें हमने जो है वो ब्रेन की MRI इमेजेस हमने इनपुट करवाई हैं और इसके बाद हमने AI का मॉडल इस पर रन करवाया है। सो ब्रेन का जो आपके पास जो इमेजेस हैं वो ज़रा इस तरह दिखती हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह की दिखती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जब अपना मॉडल इन्फर कराया है तो इसमें से इसने जो चीज़ हमें चाहिए, लेट से हमें हिप्पोकैम्पस चाहिए, तो इसने हिप्पोकैम्पस को यहाँ पर जो है वो दिखा दिया है, मतलब इसको जो है वो यहाँ पर प्रीव्यू करवा दिया, ठीक है। इसका साइज़ भी बता रहे और इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, उनका भी साइज़ यहाँ पे बता रहे हैं। अब साइज़ से हमें पता चलेगा कि किस नौयत का जो है वो अल्जाइमर पेशेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी साजिद नाम है। साजिद साहब बताएं कि ये सारी जो हम डिवाइसेस देख रहे हैं अमूमन ये मशीनें हमें जिम में दिखाई देती हैं या वो लोग जो बहुत अपनी फिटनेस पे या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो ख्याल करती हैं। पाकिस्तान में क्या हेल्थ के साथ साथ इस पर भी इतनी तवज्जो दी जा रही है? देखें, सिंस लास्ट जब कोविड के इश्यूज़ आए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद से लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। जब उनको पता चला है कि हेल्थ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, लाइफ का, तो उसके बाद से फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा रुझान लोगों का बढ़ गया है। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान में सिंस लास्ट 35 ईयर से काम कर रहे हैं फिटनेस के ऊपर और हम पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ जिम्स को सप्लाई देते हैं इक्विपमेंट्स की, जबकि इसके अलावा हम लोग घर के हवाले से भी इक्विपमेंट्स तमाम सर्विसेज की प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप घर में छोटा सा अपना जिम बना सकते हैं, छोटी प्रोडक्ट्स लेके अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फिटनेस के हवाले से काम कर रहे हैं और इस वक्त माशाल्लाह काफ़ी रुझान बढ़ गया है फिटनेस का, जिम्स का क्रेज़ बढ़ गया है, जिम पर लोगों की आमदरद बढ़ गई है, अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग और इसमें तमाम तबकात आते हैं। मतलब समटाइम्स लोगों का ये होता है माइंड के शायद ये जो एक्सरसाइज मशीन्स हैं ये सिर्फ VIP कल्चर के लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप हमारे सेंटर्स पे पूरे पाकिस्तान में हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, आपके घर के अलावा घर के जो भी बजट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग हर तरह की प्रोडक्ट्स आपको फिटनेस की प्रोवाइड कर सकते हैं। होम सीरीज़ भी हैं, कमर्शियल सीरीज़ भी हैं, छोटे इक्विपमेंट्स भी हैं और साथ ही साथ हमारे सेंटर्स पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, कोई भी कस्टमर अगर हमसे कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए आता है तो हम उसको उसकी फिजिक के हिसाब से प्रॉपर हेल्थ के वाले से उसको गाइड करते हैं कि आपके लिए आपकी फिजिक पे ये प्रोडक्ट्स ठीक रहेंगी, इससे आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेडमिल तो बड़ी कॉमन हमें दिखाई देती है, उसके अलावा क्या क्या ऐसी डिवाइसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो आम तौर पे लोग घरों में इस्तेमाल करते हो? आइए मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारी, अगर आप यहाँ से बात करें तो ये सीरीज़ कहलाती है कार्डियो इक्विपमेंट्स। कार्डियो इक्विपमेंट्स में कमर्शियल ग्रेड और होम सीरीज़ की तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। इसके अलावा कार्डियो के बाद दूसरा बॉडी का जो पार्ट आता है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर जो है वो आपकी ये टाइप की स्ट्रेंथ मशीन्स होती हैं जो बॉडी बिल्डिंग्स के वाले से होती हैं। अच्छा, ये जो मशीन्स होती हैं नॉर्मली आप इनको जिम में देखते हैं, जब आप इन प्रोडक्ट्स को घर में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो घर के लोगों के लिए भी हमने सारी जो है चीज़ें हैं वो मैनेज करके रखी हुई है। ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको कहते हैं होम जिम। अब ये प्रोडक्ट जो है ये आपको बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे तमाम शॉप्स के ऊपर मिल जाता है। ये मल्टी एक्सरसाइजर है, इसके अंदर आप अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की, तमाम बॉडी के तमाम पार्ट्स की एक्सरसाइज आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। और साथ ही साथ छोटी प्रोडक्ट्स हैं कुछ जिसमें आपको एरोबिक्स की एक्सरसाइज करनी है, कुछ जिम की छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है, कुछ बेल्ट्स हैं, कुछ डंबल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे सेंटर से मिल जाती हैं। मतलब आपकी एक्सरसाइज की तमाम रेंज हमारे पास हमारे तमाम सेंटर से मौजूद होती है पूरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हेल्थ केयर से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है और लोगों की डिफरेंट राय भी सामने आ रही है। मजीद भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। जब भी फिलैंथ्रोपिस्ट की जिक्र होता है तो सफ़े अव्वल में डॉक्टर फरहान ईसा का जिक्र होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू कि आप इसको इतना अच्छे इवेंट को कवर कर रहे हैं और ये तो ये ऐसा बेंचमार्क इवेंट हो रहा है आज जो बदर एक्सपो ने किया है जो कि हेल्थ सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। ना सिर्फ कि ये हेल्थ सेक्टर को, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इक्विपमेंट बनाने वाले, डॉक्टर्स, अलाइड हेल्थ सर्विसेज के, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट वगैरह, बल्कि इसमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंजीनियरिंग के लोग, और कि हम आखिर में इससे जो चीज़ें निकलेंगी वो ये निकलेगी कि तो नॉलेज शेयरिंग हो रही है, कोलैबोरेशंस डेवलप
हो रही हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप हो रही है। कमांडर कराची एडमिरल मोहम्मद सलीम ने इनाग्रेट किया, और इसके साथ साथ ये कि अब पाकिस्तान के अंदर ये प्लान हो रहा है जनरल आसिम मुनीर की तवज्जुह से, जो SIFC का कॉन्सेप्ट आया है कि पाकिस्तान एक ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस, क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बने, पाकिस्तान में भी सप्लाई करे, इससे हेल्थ की सेक्टर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सके। इसमें विमेन एम्पावरमेंट भी हो रही है और इंटरनेशनल एरिना से कंट्री से बहुत सारे लोग आए हैं, तो मेडिकल डिप्लोमेसी और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी बनाया जा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं नाजरीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली डॉक्टर फरहान ईसा जो कि प्रोफेसर भी हैं लेकिन पाकिस्तान नेवी की जानिब से ऑनररी कमांडर के रैंक से जो है इन्हें नवाजा गया है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आपकी वेलफेयर के हवाले से तो सभी जानते हैं आपकी खिदमत, लेकिन ये पाकिस्तान नेवी की जानिब से आपको कमांडर के रैंक से और सर्जन कमांडर भी आप हो गए हैं माशाल्लाह से आप, तो क्या इसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे और कितनी आपकी स्ट्रगल थी? देखिए, मैं तो मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टीजियस ये ऑनर है, सिर्फ 8-9 लोगों को ये अब तक हिस्ट्री में मिला है, लेकिन साथ साथ हमको ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारी जो मिलिट्री, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है और वो कम्युनिटी को बहुत सर्व भी कर रही है और लोगों को कम पता होता है और हम उनके साथ मिलके भी सर्व कर रहे थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ब्रिज बने। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे PNS शिफा का स्टॉल भी लगा हुआ है और पहली दफ़ा अब नेवी अब सिविलियन के साथ मिलके काम कर रही है और एक्सपर्टीज़ शेयरिंग हो रही है, तो आई थिंक ये नेशन बिल्डिंग हो रहा है। तो ये मौका जो मुझे मिला, मैं भी उस नेशन बिल्डिंग जर्नी में अब साथ हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या वाकई हमारी यूथ की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है या वाकई इससे कोई फ़ायदा है उसको? नहीं, देखें, हेल्थ तो मुतासर है। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो कितनी सारी बीमारियां हैं, ADHD है, ऑटिज़म वगैरह है, वो सामने आते हैं। और ज़ाहिर है फर्स्ट 2 ईयर्स आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली व्हेन यू ग्रो ओल्डर, नीड्स के हिसाब से नीड बेस्ड होना चाहिए। फिटनेस जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी शख्स के लिए, और आजकल की यूथ जो है वो अपनी हेल्थ और फिटनेस को तवज्जो दे रही है या सिर्फ वो सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए दिखा देते हैं जी हमने जिम ज्वाइन किया हुआ है और हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं? नहीं, I think in the new generation, the trends have changed and people have started to take up their health very seriously nowadays. So it's just not on the social media but also in the real lives, yeah. हेल्थ पे अगर तवज्जो की बात दी जाए, हमारे बड़े कितना अपने बच्चों को ये समझा पा रहे हैं कि अपने हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाओ, या सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन ने एक हेल्थी लाइफ स्टाइल हमसे छीन लिया है? नहीं, आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। आजकल तो बच्चे जो हैं वो बड़ों को लाइक आई वुड से आई टेल माय पेरेंट्स टू गो एंड वर्क आउट एंड डू दिस कार्डियो फॉर देयर हेल्थ। सो आई थिंक द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड, एज आई सेड, कि इट्स द अदर वे अराउंड अब। नाज़रीन, कराची के इलाके नॉर्थ कराची में शेड हॉस्पिटल जो कि 250 से ज़ायद बेड्स पे मुश्तमिल है और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है और शेड फाउंडेशन के अंडर सुपरविजन ये इदारा काम कर रहा है, इसके रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ शेड हॉस्पिटल का। तो हमारे पास 2 हॉस्पिटल्स हैं। एक तो सरजानी टाउन जैसे रिमोट एरिया में, वहाँ पे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है हमारा, जिसका नाम हसन हॉस्पिटल है। और नॉर्थ कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहाँ पे हस्पतालों का फ़क़दान है, वहाँ पे हम जो है एक टर्जी केयर हॉस्पिटल हमने जो है वो वर्किंग में है और उसको हम जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये एक कंप्लीट टर्जी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे कार्डिक लैब, कैथ लैब मौजूद है, कार्डिक के तमाम ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैबेज है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ईच एंड एवरीथिंग, कार्डिक विंग है। फिर इसके अलावा जो है वहाँ पे ICU, HDU, CCU, PICU, NICU, OT कॉम्प्लेक्स, ER, जो एक टर्जी केयर हॉस्पिटल में होना चाहिए वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। कैथ लैब तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मॉलिक्यूलर लैब, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुसब खान। अच्छा मुसब, आप पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, सब यूथ और यंगस्टर्स मौजूद हैं, मेडिकल के आप लोग स्टूडेंट्स हैं? जी जी। तो क्या आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? जी, हम 4th ईयर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो हमने एक फर्स्ट एड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग की। तो हम लोग बेसिकली लोगों को फर्स्ट एड सिखाते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। आप बताएं, ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है हमारे यहाँ बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, किसी को आता नहीं है कुछ भी, घर में अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो उल्टा कहते हैं कि गलत ट्रीट करके मार ही देते हैं बंदे को, ऐसे ही होता है? बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, यही होता है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, सोसाइटी को कैसे बेहतर किया जाए? हम अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम मल्टीपल सेशंस कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम लोगों को सिखा सकें किस तरह से फर्स्ट एड दी जाती है और किस तरह से नहीं देनी चाहिए। यहीं पे कोई हम में से एकदम बेहोश हो जाए तो किस तरीके से फर्स्ट एड दोगी उसे?
सबसे पहले तो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है DRABC। हम सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं, ब्रीथिंग चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे और उसके बाद रिक्वायरमेंट जो भी होगी पेशेंट के लिहाज से फिर हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एक बड़ा मसला ये भी है कि अगर सड़क पे कोई हादसा हो जाता है, रोड इंजरीज हो जाती हैं, तो लोग जो है गलत तरीके से हैंडल करते हैं पेशेंट को और मजीद उसके लिए नुकसान का सबब हो जाता है ये। तो इन बच्चों ने, इन यंगस्टर्स ने क्या ऐसा काम किया, ये भी जान लेते हैं। क्या कुछ बनाया आप लोगों ने? जी मैं बताती चलूँ कि अबाउट 30,000 डेथ्स जो हैं पाकिस्तान में एनुअली वो इस वजह से होती हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर अनअवेयर कि किस तरह से अगर एक्सीडेंट हो गया है तो पेशेंट को किस तरह से डील करना है। सो फॉर दैट अगर हम लोग देखें कि किस तरह से औरतें ट्रैवल कर रही होती हैं, वो साइडवेज बैठती हैं, उनके दुपट्टे बाइक में फंस जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं। यंगस्टर्स को देखें तो उनको वन व्हीलिंग करनी होती है, स्पीडिंग करनी होती है, ईद का कोई फेस्टिवल्स और समथिंग, सो इतना ओवरलोड होके बसेस फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ और फ्रॉम सिटीज़ टू विलेजेस जाती हैं। सो इन सब चीज़ों को किस तरह से प्रिवेंट करना है, सेफ ड्राइविंग टेक्निक्स किस तरह से करनी है, और अबव ऑल ये सिर्फ हम लोग नहीं कर सकते, वी ऑल्सो नीड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इम्प्रूव करें। अब मुझे लास्ट में बस ये बताएं कि सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट ही आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या सोसाइटी के दीगर लोग भी आ सकते हैं आपके साथ? सो बेसिकली रेस्क्यू जो है वो एक आम बंदे के लिए है, क्योंकि हम आउटसाइड द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक आम बंदे के साथ होता है और उन्हीं को चाहिए कि वो पेशेंट को एक प्रोटोकॉल के ज़रिए, एक अप्रोच के ज़रिए पेशेंट को किसी तरह बचाएं, उनकी लाइफ सेव करें एंड उसको हॉस्पिटल सेटिंग में एक बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि फॉलो रेस्क्यू एंड सेव लाइफ्स। हेल्थ पर जब तवज्जो की बात आती है तो बड़े यही चाहते हैं कि बच्चों का ध्यान रखा जाए, और इस्लामाबाद के अंदर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ने एक ऐसा AI बेस्ड पाकिस्तान का पहला रोबोट तैयार कर लिया है जिसका नाम ही उन्होंने ध्यान रखा है, और ये ध्यान रखेगा घर में बच्चों का भी और पेशेंट्स का भी। तो हमारे साथ एक मौजूद है रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी? मेरा नाम नासिर एलिया है। अच्छा नासिर साहब, ये बताएं कि ये जो रोबोट बनाने का मकसद है ये कितने टाइम में ये डेवलप हुआ है और इसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जी आजकल ऑटिज़म की जो बीमारी हम कहेंगे इसको, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट तैयार की थी, जो कि बाद में हमने इसको जनरल कर दिया है, इसको बाकी बच्चों के लिए भी ओपन कर दिया है। इसको तकरीबन इसकी R&D पे हमारे 7 मंथ लगे हैं। ये AI बेस्ड है, ये बच्चों का ध्यान रखता है, इंटरेक्टिव सेशन करता है, जवाब देता है, खेलता है बच्चों के साथ, और अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो उनको उसी वक्त AI बेस्ड खुद भी सीखता है और उनको भी सिखा रहा होता है। इसमें डिफरेंट गेम्स हैं और प्ले स्टोर जो स्टोरी जो हैं वो भी उनको सुनाता है, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में। तो क्या ये अभी हमसे बात कर सकता है या ये किसी बच्चे से बात करके यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बात कर सकता है, उसका माउस वगैरह, ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन भी करवाएगा कि मैं अभी मेरे क्या क्या काम है, मेरे क्या नाम है। अभी हम इसमें एक फीचर और भी डाल रहे हैं कि बच्चे खुद से भी इसका नाम रख सकते हैं, कि कोई भी बच्चे हैं जो इसका नाम रख सकते हैं और फिर उनको ये रिप्लाई करता है। तो ये थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करवा। अच्छा, इसका एक सेकंड वर्जन हम लेके आ रहे हैं, HSA नर्स, जो कि BP ब्लड प्रेशर चेक करेगी, स्माइल भी देगी जैसे आम तरह से होता है, वो अच्छे से बात भी करेगी, शुगर टेस्ट करेगी और उसको काम रहने की वो कहेगी कि आपका ये ब्लड प्रेशर है। ये रोबोटिक नर्स की तरह बिहेव करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये अभी बात भी करेगा ये रोबोट, किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएगा अपना? दयान अपना इंट्रोडक्शन आपको देगा, आप इससे ये आप अभी इसके देखें, ये आपको बताएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं ध्यान हूँ। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का एक इंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुझे पाकिस्तान में मकामी तौर पर डिजाइन किया गया है। मैं नई महारतें सीख रहा हूँ और बेहतर महारतों के साथ वापस आऊँगा।
पाकिस्तान की जानिब से ये पहला एक ऐसा AI रोबोट तैयार किया गया स्पेशली ऑटिज़म से मुतालिक जो बच्चे हैं या डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं, तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको एक बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस्लामाबाद में बेस ये हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, ये सब ने मिल के जो है इस रोबोट को तैयार किया और इसका नाम भी बड़ा प्यारा रखा है ध्यान, ताकि ये बच्चों का ध्यान रख सके। पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर की तरक्की के लिए जो इनोवेशन और रिसर्च सामने आ रही है और जदीद टेक्नोलॉजी से इस सेक्टर को मुतारिफ करवाते हुए पाकिस्तान को इंटरनेशनली सतह पे उजागर किया जा रहा है। आज इसी हवाले से पाकिस्तान में कराची में हेल्थ केयर का आगाज़ हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मैसेज आम करने की कोशिश की गई कि प्रिवेंशन के साथ साथ जदीद हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ को भी दुनिया भर में मुतारिफ करवाया जाए। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।